Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss fabulous MCQ with explanation series 1. It is basically useful for principal exams, EMRS, KVS, NVS, and other central government exams. In this part, today I will discuss CCS Conduct Rules 1964, Rule 4 to 8, 13 MCQs, and I will also explain rule 4 to 8 very lucidly and briefly, and also I will give some descriptive questions. What type of questions it is coming? You know that now in principal exams, prelim is there, main is there, and in main examination also descriptive questions coming. So for that reason, I have included some descriptive pattern questions. Right? Definitely this part would be interesting one, and all the rules I will be covered, and it is especially for EMRS principal exam because it is just in incoming and upcoming examination. So those candidates actually they are going to appear EMRS principal exam. It is very useful for them, both prelim and main. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for upcoming videos. So now I am going to start fabulous MCQ plus explanation series 1. Okay, 13 MCQs, explanation and also descriptive questions. Right? So you see, question number 1. Under CCS Conduct Rules 1964, what is prohibited under the regulations regarding government servants and their family members? What is prohibited? 4 options are there. You see options: government employees cannot use their influence to procure employment for their relatives in companies with official dealings. Second option, government employees can work in companies with official dealings as long as they inform their superiors. Third one, only senior officers are prohibited from influencing employment for family members. Fourth option, employees can use their influence if they have received prior permission from the गवर्नमेंट. आप देख लीजिए सीसीएस कॉन्डक्ट रूल्स रूल 4 देख लीजिए. रूल 4 में क्लियरली मेंशन है यदि गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली डीलिंग विथ एनी कंपनी और डीलिंग विथ एनी फार्म, उसमें द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा जिस कंपनी और फार्म के साथ वो डील कर रहा है. ठीक है, उसका वो कुछ काम चल रहा है और उस केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कुछ फायदा नहीं लगा कि मेरा कोई डिपेंडेंट है, कि मेरा सन है, कि डॉटर है, उनको जॉब उसमें मिल जाए क्योंकि मेरा अभी ऑफिशियल डीलिंग्स है. तो ऐसा नहीं कर सकता, इस तरीका का इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता. ठीक है, ये रूल 4 में क्लियरली मेंशन है. ठीक है, सो इसमें 4 ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. Government employees cannot use their influence to procure employment for their relatives in companies with official dealings. तो जिस कंपनी के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, जिस फार्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, उसमें वो इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा कि कोई उसका रिलेटिव को जॉब वहां पर मिल जाए. ओके, सो he or she should not pressurize the concerned company or firm. It means where actually he is dealing some official dealing, so he is not pressurized to procure any type of employment for the relatives. Option A is the correct one. इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बहुत लूसिड एक्सप्लेनेशन होगा रूल 4 का, थोड़ा वेट कीजिए. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. चलो क्वेश्चन नंबर 2. अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, which employees under the government of India are required to furnish information regarding their close relations on first employment. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो क्वेश्चन है अगेन रूल 4 आप देखिए, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 4 में है. जब आपको फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलता है तब उसमें आपको डाटा देना है गवर्नमेंट को, आपका क्लोज रिलेशंस का डाटा देना है.
ठीक है, आपका आपके ऊपर कौन कौन डिपेंड करते हैं, जैसे आपका सन है कि डॉटर है कि कोई माइनर ब्रदर है, कोई सपोज अनमैरिड सिस्टर है, जो जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो उनका डाटा देना है। तो which employees under the government of India are required to furnish information regarding their close relations and fast employment? Four options are there. First option, all employees including group D must provide information. Only group D employees are required to provide such information. All employees except group D must provide information about their close relations. Only class 1 officers are required to provide such information. अब देखिए जो चार ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सभी एम्प्लॉइज फास्ट, जब आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है गवर्नमेंट में, तो आपको आपका क्लोज रिलेशंस का डाटा देना है, एक्सेप्ट ग्रुप डी एम्प्लॉय। ग्रुप डी एम्प्लॉय को नहीं देना है, ठीक है। अदर जो है, जैसे ग्रुप ए में कि ग्रुप बी में कि ग्रुप सी में जो एम्प्लॉइज ज्वाइन कर रहे हैं फास्ट एम्प्लॉयमेंट में, फास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है गवर्नमेंट में, तो उनको उनका क्लोज रिलेशंस का डाटा में, जैसे बताया, जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, उनका डाटा आपको जरूरी देना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ क्लास 1 ऑफिसर्स इन कंपनीज और फार्म्स। ये पर्टिकुलरली क्लास 1 ऑफिसर्स के ऊपर है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जैसे आपका कोई नियर क्लास 1 ऑफिसर का कोई नियर रिलेटिव है, तो वही दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ क्लास 1 ऑफिसर्स इन कंपनीज और फार्म्स, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आप देख लीजिए। क्लास 1 ऑफिसर में परमिट हिज सन और डॉटर टू वर्क इन ए कंपनी विद ऑफिशियल डीलिंग्स विदाउट एनी अप्रूवल। A class 1 officer must seek prior approval from the government if his son or daughter is to work in a company with official dealings. There is no restriction on the employment of relatives of class 1 officers in companies or firms. Only group D employees are required to seek prior approval for the employment of their close relatives. इसमें जो ऑप्शन दिया है आप देखिए, सपोज जो क्लास 1 ऑफिसर का डीलिंग है, पर्टिकुलरली फार्म ऑफिशियल डीलिंग है, कोई कंसर्न फार्म के साथ कि कोई कंसर्न कंपनी के साथ, और उसमें सपोज उसका सन की डॉटर, कोई भी जो उसका डिपेंडेंट है, जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका जो फैमिली मेंबर, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसको अप्रूवल, क्लास 1 ऑफिसर को फर्स्ट अप्रूवल लेना है गवर्नमेंट में कि इस कंपनी में मेरा ऑफिशियल डीलिंग है, और मेरा सन को अभी उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कि मेरा डॉटर को मिल रहा है, कि कोई मेरा फैमिली मेंबर जो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं उनको मिला है, तो फर्स्ट अप्रूवल लेना है। विदाउट अप्रूवल आपका जो डिपेंडेंट है, जो क्लास 1 ऑफिसर्स का डिपेंडेंट है, वो कंसर्न कंपनी और कंसर्न फार्म में ज्वाइन नहीं कर सकते, जिसके साथ एक्चुअली कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑफिशियल डीलिंग है। तो प्रायर अप्रूवल चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है ट्रू पूछा है, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्लास 1 ऑफिसर में परमिट हिज सन और डॉटर टू वर्क इन ए कंपनी विथ ऑफिशियल डीलिंग्स, सॉरी it is option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay, a class 1 officer must seek prior approval from the government if his son or daughter is to work in a company with official dealings. यदि जिस कंपनी के साथ उसका ऑफिशियल डीलिंग है, जिस फार्म के साथ उसका ऑफिशियल डीलिंग है, और उसमें उसका सन डॉटर को सपोज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो उस केस में फर्स्ट उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए। जो कंसर्न क्लास 1 ऑफिसर को गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल चाहिए। देन यदि अप्रूवल मिलता है गवर्नमेंट से, तब उसका सन और डॉटर वो कंसर्न कंपनी और फार्म में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके साथ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑफिशियल डीलिंग चल रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं बताया जो प्रिंसिपल एग्जाम है, प्रीलिम है, मेन है, और प्रीलिम में तो ऑब्जेक्टिव है, मगर मेन में डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। तो बोथ एमसीक्यू और पर्टिकुलर रूल का एक्सप्लेनेशन है, और कुछ सब्जेक्टिव, किस तरीके का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा। तो रूल 4 देखिए, सीसीएस कंडक्ट
रूल्स 1964 का, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन कंपनीज और फार्म्स। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, नो क्लास 1 ऑफिसर साल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट परमिट इज सन daughter or other dependent to accept employment in any company or firm with which he has official dealings or in any other company or firm having official dealings with the government। अभी तो मैं बताया उसको, तो उसमें क्या है, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई यदि कोई कंपनी और फार्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग कर रहा है और उसी कंपनी में उसका सन की डॉटर की कोई भी उसका जो उसके ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं, उसका कोई फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट है, यदि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट वो ज्वाइन नहीं कर सकते। फर्स्ट गवर्नमेंट से सैंक्शन होना चाहिए कि मेरा ये कंपनी के साथ ऑफिशियल डीलिंग है और मेरा सन को यहाँ पर जॉब मिला है इसी कंपनी में, जिस कंपनी के साथ मेरा ऑफिशियल डीलिंग है, कि मेरा डॉटर को जॉब मिला है, कि मेरा कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को जॉब मिला है, तो ऐसे फर्स्ट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। यदि गवर्नमेंट सैंक्शन करता है, अप्रूव करता है, कि अप्रूव करने के बाद ही आपका जो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट का जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है कि सन डॉटर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय डिवाइड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस और यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस इन प्रोक्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग चल रहा है और जिस बेसिकली फार्म के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग चल रहा है, वहां पर आप प्रेशर नहीं डालेंगे कि उसमें मेरा कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की मेरा जो सन डॉटर है उनको जॉब मिल जाए। ठीक है, आप कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। ठीक है, और नेक्स्ट वन, फास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जब आपको मिल रहा है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जैसे कोई कंसर्न कैंडिडेट को फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, तो एक्सेप्ट ग्रुप डी, चाहे आप ग्रुप ए पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो, ग्रुप बी पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो, कि ग्रुप सी पोस्ट में ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें आपको डाटा देना है कि आपका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनका पूरा डाटा देना है, एक्सेप्ट ग्रुप डी। ठीक है, ये रूल 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द, ये रूल पोजीशन को भी याद कीजिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन कंपनीज और फार्म्स। ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन ये आ सकता है, देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेन रूल 4 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। मैं भी बताया था, जैसे इस तरीका का आंसर में क्लास 1 ऑफिसर है, यदि क्लास 1 ऑफिसर का कोई कंपनी और फार्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग है और उसका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को वहां पर जॉब मिल रहा है विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, वहां पर वो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ज्वाइन नहीं कर सकता। फर्स्ट वन क्लास 1 ऑफिसर क्या करेगा ना, गवर्नमेंट का अप्रूवल परमिशन लेगा। ठीक है, विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर कैन नॉट ज्वाइन the concerned company or firm in which actually the concerned government servant has official dealing। ठीक है, तो इस तरीका का लिखना है। और एक मैं बताया था, सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई कंपनी और फार्म में ऑफिशियल डीलिंग चल रहा है, कुछ ऑफिशियल वर्क चल रहा है और उसमें वो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो कंपनी और फार्म को प्रेशराइज नहीं करेगा, कि इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा कि मेरा कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को वहां पर जॉब मिल जाए, ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को आपको देना है। और जैसे फास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट में एक्सेप्ट ग्रुप डी, तो आपको आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर का डाटा देना है, वो सर्विस बुक में पूरा डाटा रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे आता है। देखिए, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड ऑन क्लास 1 ऑफिसर्स अंडर रूल 4 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स। अभी मैं बताया था, क्लास 1 ऑफिसर यदि उसका कोई कंपनी और फार्म के साथ ऑफिशियल डीलिंग है और उसका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को वहां पर जॉब मिल रहा है, तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। यदि गवर्नमेंट अप्रूव करता है तब उसका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वो कंपनी और फार्म में ज्वाइन करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑफिशियल डीलिंग है वो कंपनी फार्म में। और सीसीएस रूल 4 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स क्या बोल रहा है कि यदि क्लास 1 ऑफिसर का डीलिंग है, ऑफिशियल डीलिंग है कंसर्न फार्म और कंपनी में, और वहां पर उसका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को जॉब मिल रहा है, तो वो विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स कैन नॉट ज्वाइन the concerned company or firm with which actually the concerned government employee has official dealings। तो इसे आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा
The question number 3 question, discuss the purpose and significance of furnishing information about close relatives at first employment according to rule 4. कि what are the consequences for a government servant who participates in procuring employment for a close. यहाँ पर consequence क्या होगा? सपोज आपका कोई क्लोज रिलेटिव प्रोक्यूरिंग एम्प्लॉय, आपका कंसर्न कंपनी, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं बता रहा हूं कि आपका कंसर्न कंपनी और फार्म के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, और आप वहां पर इन्फ्लुएंस डाल के आपका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को वहां पर जॉब दे दिया, और बाद में गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट का परमिशन आप नहीं लिया और वहां पर जॉब आप दे दिया, आपका कोई क्लोज रिलेटिव को वो कंपनी फार्म में आप जॉब दे दिया इन्फ्लुएंस डाल के, तो वो वायोलेशन होगा, तो वहां पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर। यही कॉन्सिक्वेंस जो पेनल्टीज है, माइनर पेनल्टी तो इंक्वायरी हो डेफिनेटली होगा, ठीक है, माइनर पेनल्टी मेजर पेनल्टी लगेगा, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, वही कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस एक्चुअली इस तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएगा, मगर आपको कंटेंट के ऊपर आपका कमांडिंग होना चाहिए, कंटेंट को समझना चाहिए कि जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स रूल 4 क्या बोल रहा है रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 5 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 प्रोहिबिट्स ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम। रूल 5 जो सीसीएस कंडक्ट रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 5 में ज्वाइनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, कन्वर्सिंग फॉर ए पॉलिटिकल कैंडिडेट, डिस्प्लेइंग पॉलिटिकल फ्लैग्स और एम्ब्लेम्स ऑन अलॉटेड रेसिडेंस और व्हीकल, ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें जो प्रोहिबिशन है रूल 5 में डी ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि ये रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए वो लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता कि आपका जो रेसिडेंस में जो ऑफिशियल क्वार्टर है वहां पर कोई भी फ्लैग की एम्ब्लेम, पॉलिटिकल फ्लैग की पॉलिटिकल एम्ब्लेम आप नहीं लगा सकते, कि आपका जो व्हीकल है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपका व्हीकल में कोई पॉलिटिकल फ्लैग और एम्ब्लेम्स आप नहीं लगा सकते। तो ये रूल 5 बोल रहा है। तो ये रूल 5 जो है ये रिलेटेड टू द बेसिकली पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तो थोड़ा मैं बता दिया, ऑल ऑफ द अबव, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए आप लोगों को अप्रोच नहीं, पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकते, आपका ऑफिशियल रेसिडेंस में आप कोई पॉलिटिकल फ्लैग्स और एम्ब्लेम्स नहीं लगा सकते, कोई आपका व्हीकल्स में आप ऑफिशियल फ्लैग और एम्ब्लेम नहीं लगा सकते। तो ये है ऑल ऑफ द अबव, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मे अटेंड पॉलिटिकल रैलीज ओनली इफ, कि क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय पॉलिटिकल रैलीज अटेंड कर सकता है? कोई भी पॉलिटिकल रैलीज अटेंड नहीं कर सकता। मैं अभी बताया था कि जो रूल 5 सीसीएस कंडक्ट रूल्स, आप अगेन रूल 5 ये बोल रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, पॉलिटिकल रैलीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट के लिए लोगों को अप्रोच नहीं कर सकता, उसका ऑफिशियल रेसिडेंस में कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग है कि एम्ब्लेम उसको वो इंस्टॉल नहीं कर सकता, कि उसका जो व्हीकल है, ठीक है, उसका व्हीकल में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग और एम्ब्लेम नहीं लगा सकता। तो ये रूल है बोल रहा है, तो इसमें कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिकल रैलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेवर, दे कैन नॉट अटेंड पॉलिटिकल मीटिंग्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए रूल 5 को हम अभी डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, यहां पर दे दिया नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, नॉट टू कन्वर्सिंग, नॉट टू असिस्ट एनी सच एक्टिविटी, नॉट टू कलेक्ट सब्सक्रिप्शंस टू एड, नॉट टू डिस्प्ले पार्टी सिंबल्स एट हिज रेसिडेंस और ऑन हिज व्हीकल। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट को कोई पॉलिटिकल पार्टी को असिस्ट नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं करेगा, और उसका जो ऑफिशियल रेसिडेंस में कोई भी पार्टी का सिंबल वो यूज नहीं कर सकता, कि उसका जो व्हीकल में वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल के एम्ब्लेम वो यूज नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन।
इवन फैमिली मेंबर्स टू नॉट टू अलाउ इवन फैमिली मेंबर्स, ठीक है, नॉट टू अलाउ। तो इसीलिए तो जब आप फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है तो आपका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है आपको पूरा डाटा देना है गवर्नमेंट को, एक्सेप्ट ग्रुप डी एम्प्लॉइज। इसमें क्या है, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। फैमिली मेंबर्स जो आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स है, आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट उनको भी मना करेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो ज्वाइन नहीं करेगा, कि सपोज कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो लोगों को अप्रोच नहीं करेगा, कोई कैंडिडेट के लिए लोगों को अप्रोच नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी को असिस्ट नहीं करेगा। पर इस केस में कभी कभी क्या होता है, यदि कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, ठीक है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी को असिस्ट करता है, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट के लिए सपोज अप्रोच करता है, उसका राइट है, तो उसमें क्या होगा, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिपोर्ट गवर्नमेंट को मस्ट इन्फॉर्म करेगा। ओके, गवर्नमेंट को वो इमीडिएटली कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्फॉर्म करेगा कि मेरा एक डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है और मैं उसको इन्फॉर्म किया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व ना होने के लिए, मगर वो अभी वो पॉलिटिकल पार्टी को असिस्ट कर रहा है कि आज एक कैंडिडेट वो खड़ा हो रहा है, इट मीन्स आज एक कैंडिडेट और इलेक्शन में, और ये सब है, ठीक है। तो कोई फैमिली मेंबर्स कर सकता है, मगर जब आपका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर यदि पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होता है, यदि इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है, तो इस केस में आपको रिपोर्ट कर देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वो आप तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया, मगर आपका ऑफिशियल रेसिडेंस में ओके कोई आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एम्ब्लेम है कि फ्लैग है वो यूज नहीं कर सकता, कि आपका जो व्हीकल है उसमें वो आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वो यूज नहीं कर सकता, कोई एम्ब्लेम है कोई फ्लैग है उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज है। तो फैमिली मेंबर कभी कभी क्या है, क्वेश्चन आता है, तो फैमिली मेंबर को आप नॉर्मली आप उसको अलाउ नहीं करोगे, जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, जो आप गवर्नमेंट को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुके हो कि यही मेरा डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, और उनको आप अलाउ नहीं करोगे। यदि वो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। देन एम्प्लॉइज टू मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रहना है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जैसे जैसे सपोज कोई पॉलिटिकल मीटिंग है और आपको वहां पर डिप्यूट कर दिया गया, जैसे पुलिस पर्सनल से आपका तो ड्यूटी वही है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कोई पॉलिटिकल मीटिंग है उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, मगर आपको न्यूट्रल रहना है, क्योंकि आप ऑफिशियल ड्यूटी कर सकते हो। जैसे आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एनी अदर सपोज इलेक्शन टाइम में इलेक्शन कमीशन जो ड्यूटी आपको देता है वहां पर आप जाकर काम कर सकते हो, ऑफिशियल ड्यूटी कर सकते हो, मगर आपको न्यूट्रल रहना है, वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो वही है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। नॉट टू अटेंड पॉलिटिकल मीटिंग्स, ठीक है, ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अटेंड टू पोल ड्यूटीज, तो अटेंड आपका जब पोलिंग होता है तब उसमें पोलिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, आप अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन आप जाकर वो जो ड्यूटी आपको दिया जाएगा वो आप करोगे, मगर आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। और जब आप वोट भी दे सकते हो, आप जाकर जब वोट फ्रेंचाइज करोगे उसमें भी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट नहीं करोगे, आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। जब आप वो वोट कास्ट कर रहे हो आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तब आपको भी न्यूट्रल रहना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। तो ये सब रूल 5 बोल रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट को आपको एम्फसाइज करना है, ठीक है। चलो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रूल 5 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, व्हाई इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी इंपोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग वेरी वैल्यूएबल सर्विस टू द पब्लिक, यू शुड बी न्यूट्रल वन, यू शुड नॉट सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू शुड नॉट सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल कैंडिडेट। तो ये सब पॉइंट्स को आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज व्हिच आर कंसीडर्ड एज टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 5। कुछ एग्जांपल्स आप दे दो, ये भी हो जाएगा, मैं अभी एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज।
आपका जो फैमिली मेंबर्स है यदि वो पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको रिपोर्ट देना है गवर्नमेंट को। फर्स्ट ये याद रखिए, फर्स्ट आप उनको अलाउ मत करो कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन मत करो, कि आपका इलेक्शन में आज एक कैंडिडेट आप खड़ा नहीं हो सकते, ये सब है। मगर आपका कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होता है तो उसमें आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दो कि मेरा ये पर्टिकुलर ये फैमिली मेंबर मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था और ये फैमिली मेंबर अभी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, तो आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे दो। और सेफगार्ड्स क्या है, आपका जो ऑफिशियल रेसिडेंस में, जैसे आपका सपोज चाहे ब्रदर है कि आपका कोई सिस्टर है, ठीक है, कि आपका कोई सॉन है कि सपोज डॉटर है, यदि वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, यदि वो आज एक कैंडिडेट खड़े होते हैं और आपको आपका बात वो नहीं माना, तो आप तो रिपोर्ट दे दिया गवर्नमेंट को कि ये जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर थे वो अभी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया, कि आज एक कैंडिडेट वो खड़ा हो गया, रिपोर्ट तो दे दिया। मगर आपका रेसिडेंस में वो कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल की एम्ब्लेम यूज नहीं कर सकते, कि आपका व्हीकल्स में वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल और एम्ब्लेम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी मीटिंग फिटिंग आपका ऑफिशियल रेसिडेंस में नहीं होगा, इसको ध्यान देना है, ये सेफगार्ड्स है। तो ये नहीं है कि आपका कोई फैमिली मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेट करेगा तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देना है, मगर ये सबको आपको अलाउ नहीं करना है। Any type of political meeting should not be conducted in your official residence. Okay, any type of emblem, any type of political flag should not be used in your residence. Any type of political flag, any type of emblem should not be used in your vehicle. समझ में आ रहा है? कोई भी एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्चुअली शुड नॉट बी डन इन योर ऑफिशियल रेसिडेंस, याद रखना है। तो वही सेफगार्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस देना है गवर्नमेंट सर्वेंट कास्टिंग। जब आप सबका ईच एंड एवरी सिटीजन ओके अबव 18 ईयर्स दे आर हैविंग राइट टू कास्ट द वोट। तो आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आप वोट दे सकते हो, मगर आपको न्यूट्रल रहना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, कोई पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करना है। और कानवासिंग, और एक डिफरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट कानवासिंग मीन्स आप कोई कैंडिडेट के लिए पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकते, ओके कोई पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते कोई कैंडिडेट के लिए ऑन बिहाफ ऑफ एनी कैंडिडेट। यू शुड नॉट अटेंड एनी पॉलिटिकल मीटिंग, यू शुड नॉट अप्रोच टू द पब्लिक, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये सब मेरा एक्सप्लेनेशन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में आप थोड़ा देख लीजिए। मैं बार बार बता रहा हूं, आपका कंटेंट के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, तब इजीली कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा पॉइंट वाइज दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रूल 6 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 इज रिलेटेड टू। अभी रूल 6 आ गया, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ज्वाइनिंग एसोसिएशंस, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, स्पेकुलेशन इन स्टॉक। जो रूल 6 है वो ज्वाइनिंग एसोसिएशन से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी हम बताएंगे इसके ऊपर भी ब्रीफ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, पब्लिक ऑर्डर, सीसीएस कंडक्ट रूल्स रूल 6, जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का रूल 6 में पब्लिक ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया जाएगा। हेल्पिंग पॉलिटिकल पार्टीज विन इलेक्शंस, मेंटेनिंग पीस एंड लॉ इन सोसाइटी, टेकिंग मोरल क्लासेस, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेंटेनिंग पीस एंड लॉ इन सोसाइटी। पब्लिक ऑर्डर मीन्स वही है, मेंटेनिंग पीस एंड लॉ इन सोसाइटी। जो रूल 6 एक्चुअली पब्लिक ऑर्डर को डिफाइन किया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर रूल 6 देख लीजिए, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस। यहां पर दिया है कि नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन एक्टिविटीज ऑफ व्हिच आर prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India और public order और morality। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है, आप कोई भी ऐसा एसोसिएशन आप ज्वाइन नहीं करोगे जो वो क्या है, अगेंस्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड अगेंस्ट ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और वो पब्लिक ऑर्डर को वायोलेट कर रहा है और जो मोरालिटी है उसको वायोलेट कर रहा है। तो ऐसा कोई एसोसिएशन में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अच्छा, आपका जो सर्विस एसोसिएशन है वो रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट उसको अलाउ किया है, वो सर्विस एसोसिएशन आप ज्वाइन कर सकते हो। मगर ऐसा कोई एसोसिएशन आप ज्वाइन करोगे जिसके वजह से क्या होगा ना, वो जो हमारा नेशन के अगेंस्ट में जाएगा, जैसे पब्लिक ऑर्डर जो पीस और लॉ है वो एसोसिएशन उसको वायोलेट कर रहा है,
कभी कभी स्ट्राइक में जा रहा है, कभी कभी डेमोन्स्ट्रेशन में जा रहा है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट कर रहा है ना। तो आपको ऐसा एसोसिएशन नहीं ज्वाइन करना है जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, अगेंस्ट इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। और आपका जो सर्विस एसोसिएशन है वो ऑलरेडी आपका सर्विस एसोसिएशन को गवर्नमेंट अलाउ किया है, तो वो क्या है, वो एक्चुअली जो मोरालिटी है उसको फॉलो करता है। जो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर मीन्स मैं अभी बताया था पीस एंड जो लॉ है उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कोई भी एसोसिएशन आप ज्वाइन मत करो जो डेफिनेटली एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन आप, एसोसिएशन का स्पेसिफिक पर्पज है, वो कभी कभी स्ट्राइक में चले जाते हैं उनका इट मीन्स डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन मत करो, क्योंकि एसोसिएशन ज्वाइन करोगे तो वहां पर क्या होगा, उनका कुछ स्पेसिफिक पर्पज होगा, उनका कुछ स्पेसिफिक एम होगा, और वो स्ट्राइक में जाएंगे, वो डेमोन्स्ट्रेशन में जाएंगे, कभी कभी वो अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन में जाएंगे। तो आपको कोई भी एसोसिएशन एक्टिविटीज में ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। और यदि उसको आप वायोलेट कर रहे हो तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, क्लियर। तो उसमें भी इस तरीका का क्वेश्चन आ सकता है, मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई किया। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रूल 6 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, व्हाई आर सच रेस्ट्रिक्शंस नेसेसरी, what types of associations or organizations are prohibited for government servants under rule 6, give examples and justify the rule's importance in maintaining constitutional integrity, differentiate between recognized service associations and organizations affecting public order or morality, under which conditions can a government servant be a member of a service association। मैं अभी बताया था कि सर्विस एसोसिएशन जिसको गवर्नमेंट अलाउ किया है और उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपका सर्विस एसोसिएशन को गवर्नमेंट अलाउ किया है और वो पब्लिक ऑर्डर को स्ट्रिक्टली मानता है, वो मोरालिटी को फॉलो करता है, वो उनका जो एम्बिशन है कि एम है, जो पर्पज है, इट इज नॉट अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, इट इज नॉट अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो जो एसोसिएशन रिलेटेड है रूल 6 सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। रूल 7 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 डील्स विथ, अभी रूल 7 को आ जाएंगे। तो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का रूल 7 किस तरीके का फैक्ट को डील कर रहा है, ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। रूल 7 जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 वो एक्चुअली डील कर रहा है डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रूल 7 को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। फर्स्ट पॉइंट देखिए, नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट में जाते हैं। कभी आप स्ट्राइक में चला गया, डेमोन्स्ट्रेशन में चला गया, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, स्ट्राइक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हाउ टू डिफाइन स्ट्राइक्स, रिफ्यूजल टू वर्क, आप काम करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, वो एक स्ट्राइक की तरह है। स्टॉपेज, आप वर्क बंद कर दिया, आप काम जो कर रहे थे, आपका नॉर्मल वर्क है, जो गवर्नमेंट ड्यूटी आपका असाइनमेंट है, बेसिकली जो ड्यूटी आपको असाइन किया गया है, जिस पोस्ट में आपको रखा गया है कि इस तरीके का काम करना है, और जो पब्लिक डिमांड है और उनका जो पब्लिक का जो पर्पज है उसको फुलफिल करना है, आप उसको बंद कर दिया। स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क, आपका वर्क डिले हो रहा है, आप स्लो कर दिया काम, ओके। और मास लीव में आप चले जाते हो, मास लीव, तो ये सब स्ट्राइक को डिफाइन करता है। रिफ्यूजल ऑफ वर्क, स्टॉपेज ऑफ वर्क, स्लोइंग डाउन ऑफ वर्क, ओके, और टेकिंग मास कैजुअल लीव, ये सब डिफाइन करता है स्ट्राइक को। अभी और उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नॉट टू घेराव एनी पब्लिक सर्वेंट, आप कोई पर्पज के लिए, सपोज आप आपका जो हेड है, आपका जो अथॉरिटी है, आप उसको घेराव कर रहे हो, ओके, ये भी वायोलेट कर रहा है, ये भी एक स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन की तरह जा रहा है। तो ऑफिशियल चैनल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑफिशियल चैनल में जाइए, ओके। आपका जो ऑफिशियल चैनल के थ्रू में
आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में पहुंचना चाहिए। ओके, प्रॉपर ऑफिशियल चैनल में जाइए। आपका कोई डिमांड है, कोई आपका सपोज नीड्स फुलफिल नहीं हुआ कि किस चीज का फैसिलिटीज आपको नहीं दिया गया, तो आप ऑफिशियल चैनल में जाइए। मगर आप डायरेक्टली क्या करना है, घेराव करना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, काम नहीं करना है, काम बंद कर देना है, मास कैजुअल लीव लेना है, ठीक है, तो ये वायोलेट कर रहा है रूल 7 को, सीसीएस कंडक्ट रूल 7 को वायोलेट कर रहा है। वायोलेशन में अट्रैक्ट, यदि आप वायोलेट कर रहे हो तब आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था रूल पोजीशन, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन किया ब्रीफली। अभी देखेंगे और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फास्ट है। वही 7 रूल 7 डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स, प्रोहिबिशन ऑन सर्टेन डेमोन्स्ट्रेशंस दिया है, देखिए, against the sovereignty and integrity of India, harmful to security of the state, damaging friendly relations with foreign states, disturbing public order, against standards of decency or morality, causing contempt of court, leading to defamation, encouraging or inciting an offense, ये सभी डेमोन्स्ट्रेशन में जाता है। इस तरीके का चीज में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ओके। जो आपका पर्पज है वो अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फॉरेन स्टेट के साथ आपका जो फ्रेंडली रिलेशन वो डैमेज हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर मींस पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर को हम वायोलेट कर रहे हैं, जो डिसेंसी, अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी और मोरालिटी क्या है, यदि आप स्ट्राइक और डेमोन्स्ट्रेशन में जाओगे उसमें क्या है, इट पैरालाइज द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल, सभी दुकान बंद हो जाएगा और कोई नॉर्मल जो लोग है उनका लाइफ पैरालाइज हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज नहीं करना, ये सब चीज क्या है, इमोरल एक्ट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कभी कभी क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कभी कभी क्या है डिफामेशन आपके ऊपर लग सकता है, लीडिंग टू डिफामेशन, और क्या है आप इंसाइट, इनडायरेक्टली इंसाइट कर रहे हो और कुछ ऑफेंस क्रिएट करने के लिए, तो ये सब डेमोन्स्ट्रेशन में जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए बैन ऑन स्ट्राइक्स एंड कोर्सन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शाल नॉट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शाल नॉट गो ऑन स्ट्राइक इन एनी फॉर्म, कोई भी स्ट्राइक में आप इन्वॉल्व मत होइए, यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, सपोर्ट और अबेट एनी स्ट्राइक, किसी स्ट्राइक को आपको सपोर्ट नहीं करना है, किसी स्ट्राइक को आपको एनकरेज नहीं करना है, यूज कोयर्सन, थ्रेट्स और फिजिकल फोर्स, किसी में आपको जबरदस्ती नहीं करना है, थ्रेट नहीं करना है और फिजिकल फोर्स नहीं करना है। और यहां पर जो है स्ट्राइक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए, पेन डाउन स्ट्राइक, आप काम नहीं किया, आप पेन छोड़ दिया, बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, ओके, आपका काम स्लो हो गया, मास कैजुअल लीव में आप चले गए, आपका वर्क स्टॉप हो गया, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, आप धारणा और घेराव में चले गए, तो ये सब स्ट्राइक में डिफाइन होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक्स, ठीक है। क्वेश्चंस देखिए इसी में क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रूल 7 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स रिगार्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक्स बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, व्हाई आर सच रेस्ट्रिक्शंस नेसेसरी इन पब्लिक सर्विस, व्हाट टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस आर प्रोहिबिटेड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर रूल 7, discuss with examples how such demonstrations can affect public order and national security, describe what is meant by strike under rule 7, list the different forms of strikes prohibited for government employees and explain their impact on public administration। ये सब में देखिए आप कंटेंट के ऊपर आपका कमांड है, आप आराम से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो, और पॉइंट वाइज आपका जो एग्जामिनेशन में क्या है क्वेश्चन और स्पेस दे देगा, जैसे 120 वर्ड्स के, 80 वर्ड्स के, 100 वर्ड्स में आपको लिखना है आंसर, 150 वर्ड्स, तो आप पॉइंट में लिख सकते हो। आप जानते हो कि स्ट्राइक क्या है, क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, कब रूल 7 सीसीएस कंडक्ट रूल 7 वायोलेट होगा, तो आपको मालूम है, अभी तो मैं एक्सप्लेन किया डिटेल्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे, रूल 8 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 डील्स विथ, अभी रूल 8 के ऊपर आ गया, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 डील्स विथ, मैं बताया था कि ये जो वीडियो है इसमें रूल 4 to 8 सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 4 to 8, ये मेरा जो फैबुलस एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, इसमें सभी रूल्स को मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं कंडक्ट रूल्स का कुछ रूल को मैं लिया और उसके ऊपर एमसीक्यू है, एक्सप्लेनेशन है और
किस तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो भी है, ठीक है। और यहां पर रूल 8 एक्चुअली डील्स विथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स। तो जो रूल 8 है सीसीएस कंडक्ट रूल्स, कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 a government servant cannot own or participate in the management of a newspaper or electronic media without permission from colleagues, without previous sanction of the government, any court order, public support। देखिए आप यहां बहुत इंपॉर्टेंट है जो रूल 8 बोल रहा है, आपको कोई न्यूज़पेपर एडिट का आप काम डायरेक्टली विदाउट अप्रूवल आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए, आपको अप्रूवल लेना है कि मैं ये कंसर्न न्यूज़पेपर का सपोज मैं एडिटिंग कर रहा हूं, कि मैं एडिटर हूं, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको पहले से परमिशन अप्रूवल लेना है गवर्नमेंट से। तो यहां पर जो ऑप्शन है मैं तो इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, आप कोई भी मैनेजमेंट ऑफ ए न्यूज़पेपर, कोई कंसर्न न्यूज़पेपर उसका मैनेजमेंट में आपका इन्वॉल्वमेंट है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और इसमें आपको विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। इसको हम एक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट रिक्वायर प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिसको प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए? एडिटिंग ए न्यूज़पेपर, कंडक्टिंग ए पीरियोडिकल पब्लिकेशन, पब्लिशिंग ए बुक इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट। देखिए गवर्नमेंट का कहां पर प्रायर सैंक्शन चाहिए? एडिटिंग ए न्यूज़पेपर, आप कोई न्यूज़पेपर में एडिटिंग कर रहे हो, प्रायर सैंक्शन चाहिए, प्रायर सैंक्शन चाहिए। पीरियोडिकल पब्लिकेशन में आपका इन्वॉल्वमेंट है, प्रायर सैंक्शन चाहिए। इसमें प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए क्योंकि आपका ऑफिशियल ड्यूटी है और इसमें आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, पब्लिशिंग ए बुक इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, आपका ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो, तो ये ही आंसर होगा, इसमें कोई प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए। वही तो क्वेश्चन पूछा है, डज नॉट रिक्वायर प्रायर सैंक्शन, ठीक है। डी देखिए, पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं अभी बताया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें भी प्रायर सैंक्शन चाहिए, जो टिक मार्क प्रायर सैंक्शन चाहिए, मगर ऑप्शन सी में प्रायर सैंक्शन नहीं चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछा है, किस एक्टिविटी में आपको प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं चाहिए? तो आपका ऑफिशियल ड्यूटी आप कर रहे हो, यू आर जस्ट डिस्चार्जिंग योर ऑफिशियल ड्यूटीज, तो फॉर डिस्चार्ज पब्लिशिंग ए बुक फॉर डिस्चार्जिंग of official duties, so there is no need of prior sanction from the government. So option C is the correct answer. Question number 12, under CCS conduct rules 1964 while publishing a book or speaking in public media, a government servant must mention that the views are personal and not of the government, represent the government officially, or avoid mentioning the source, सबमिट द ड्राफ्ट टू मीडिया हाउसेस। यहाँ पर क्या है, जब आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो और पब्लिक मीडिया में आप कुछ बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या, ऑप्शन ए इज द मेंशन दैट द व्यूज आर, आप जो व्यूज दे रहे हो, सपोज आपको एक बुक पब्लिश किया, वो आपका पर्सनल व्यू आप दे रहे हो, कि पब्लिक मीडिया में आप पार्टिसिपेट किया, आपका पर्सनल व्यू दे रहे हो, उसमें कोई गवर्नमेंट का व्यू आप नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाइल पब्लिशिंग ए बुक और स्पीकिंग इन पब्लिक मीडिया, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट मेंशन दैट व्यूज आर पर्सनल एंड नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का एमसीक्यू का, अंडर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 8। इसमें कौन सा एक्टिविटी है जिसको अलाउ किया जा सकता है, जो रूल 8 है सीसीएस कंडक्ट रूल्स में अलाउ किया जा सकता है? पार्टिसिपेटिंग इन एडिटिंग ए पॉलिटिकल मैगजीन विदाउट परमिशन, पब्लिशिंग ए बुक इन पर्सनल कैपेसिटी व्हाइल एंश्योरिंग व्यूज आर पर्सनल, conducting a weekly newspaper without sanction, running a YouTube channel for political debate without approval। तो उसमें देखिए ये अलाउ है, ऑप्शन बी ये अलाउ है, क्योंकि आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हो पर्सनल कैपेसिटी में
और उसमें आपका पर्सनल व्यू है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट स्कीम, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम की कोई गवर्नमेंट व्यू को आप एम्फासाइज नहीं किया है, जस्ट आपका पर्सनल कैपेसिटी में आप इट मीन्स एक आप राइटर हो और पर्सनल कैपेसिटी में आप बुक पब्लिश किया, उसमें आपका पर्सनल व्यूज है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड व्यूज नहीं है, तो आप पब्लिश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। मगर अदर केस में क्या है, आपको परमिशन चाहिए, प्रायर सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है। अभी हम रूल 8 को एक्सप्लेन करेंगे। कनेक्शन विथ, देखिए रूल पोजीशन को फर्स्ट याद रखिए। रूल 8 कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया। फर्स्ट वन रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया एक्टिविटीज। विदाउट प्रायर सैंक्शन आप नहीं कर सकते, विदाउट प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए आप कोई चाहे कोई एनी न्यूज पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई न्यूज पेपर में आप फुली इन्वॉल्व हो कि पार्शियली, सपोज आप एडिटिंग कर रहे हो, आप एक सपोज न्यूज पेपर एडिटिंग कर रहे हो, एडिटर हो, कि कोई पीरियोडिकल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस चीज में जब आपका इन्वॉल्वमेंट है तब प्रायर सैंक्शन चाहिए, क्योंकि ये सब चीज में क्या है ना, सभी प्रकार का चीज आता है। कभी कुछ न्यूज पेपर में देखिए बहुत कुछ इट मीन्स डाटाज है जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, क्यों न्यूज पेपर है, पब्लिक न्यूज में कभी सपोर्ट में जाएगा और कभी अगेंस्ट में जाएगा। तो कोई भी न्यूज पेपर में आप एडिटिंग कर रहे हो, कोई पीरियोडिकल आप पब्लिश कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रिकल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट है, कोई न्यूज़पेपर मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको प्रायर सैंक्शन चाहिए, अदरवाइज यू वायोलेट द रूल डेफिनेटली। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इफ यू इन्वॉल्व इन न्यूज़पेपर फॉर एडिटिंग, की पीरियोडिकल पब्लिकेशन, की इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, की इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ सपोज न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विदाउट परमिशन, देन वायोलेट द सीसीएस कंडक्ट रूल 8, तो उसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आपका अगेंस्ट में इनिशिएट होगा। नेक्स्ट में कंडक्ट, मैनेज और पार्टिसिपेट इन द एडिटिंग और मैनेजमेंट बता सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, इस चीज में आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए। तो आपका पर्पज क्या है, मेन पर्पज क्या है ना, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन और इनडायरेक्ट प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल और पर्सनल एजेंडाज। तो एटलीस्ट इसी पर्पज के लिए तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर में सपोज आप एडिटोरियल का काम कर रहे हो, कोई पीरियोडिकल पब्लिकेशन आप रिलीज कर रहे हो, कोई प्रिंटिंग मीडिया में आपका इन्वॉल्वमेंट है, कोई न्यूज़पेपर मैनेजमेंट में आपका इन्वॉल्वमेंट है, प्रायर सैंक्शन लीजिए, क्योंकि मेन पर्पज है कोई ऑफिशियल पोजीशन, आपका ऑफिशियल पोजीशन मिसयूज नहीं होगा, कोई पब्लिक ओपिनियन को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, कोई इनडायरेक्टली आप कोई पर्सनल एजेंडाज और पॉलिटिकल एजेंडाज को आप प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर का काम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम है, कोई पॉलिटिकल सपोज पर्सनल एजेंडाज को प्रमोट करना, ठीक है, कि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना, तो इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन द बोनाफाइड रिसर्च ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज पब्लिश, तो आपका ऑफिशियल ड्यूटी है और ऑफिशियल ड्यूटी में आपका यूजुअल रोल है, नॉर्मल रोल है कि आप बुक पब्लिश करोगे, उसमें आपको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर राइटिंग ए रिपोर्ट, एग्जांपल देखिए, और आर्टिकल ऑन लॉ एनफोर्समेंट है, कोई पुलिस ऑफिसर वो आर्टिकल लिख सकता है लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर, कोई टीचर एक बुक पब्लिश कर सकता है एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि आपका ये ऑफिशियल ड्यूटी है। ब्यूरोक्रेट गिविंग ए लेक्चर ऑन गवर्नमेंट इश्यूज, ठीक है, तो ये सब एग्जांपल आ जाएगा, तो ये सब अलाउ है क्योंकि आपका जस्ट आपका ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हो। और इसमें क्या है, नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ओपिनियंस मस्ट बी क्लियरली डिक्लेयर्ड। इसमें जो दिया है आप देख लीजिए, व्हेनेवर ए गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशेस ए बुक, he writes an article or participates in media, it must be made clear that the views expressed are personal and not those of the government. कोई आप बुक पब्लिश कर रहे हो, कोई आर्टिकल सपोज आप राइटिंग एन आर्टिकल की पार्टिसिपेट्स इन मीडिया, तो उसमें आपका जो व्यू है वो पर्सनल है, कोई उसमें गवर्नमेंट मैटर को आप रेज नहीं करोगे, कोई गवर्नमेंट का एजेंडा, कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम, कोई गवर्नमेंट का स्कीम, ओके, आपका व्यूज में नहीं होगा, ठीक है। तो पर्पज है टू मेंटेन ऑफिशियल न्यूट्रलिटी और टू अवॉइड पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग दैट द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द एम्प्लॉइज पर्सनल व्यूज। तो आप कोई बुक पब्लिश कर सकते हो, कोई आर्टिकल लिख सकते हो, मीडिया में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, मगर आपका पर्सनल व्यू होगा,
ओके, उसमें कोई भी गवर्नमेंट मैटर आप रेज नहीं करोगे, आप ओनली आपका पर्सनल व्यूज देना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ये जो फैबुलस एमसीक्यूज सीरीज 1 है, 3 चीज है, एमसीक्यूज है, पर्टिकुलर कंसर्न रूल का एक्सप्लेनेशन है, और क्वेश्चंस भी है, पर्टिकुलर रूल के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन आएगा वो भी है, ठीक है। तो आज रूल 4 to 8 में बताया, तो ये जो फैबुलस ये जो सीरीज चलेगा उसमें सभी रूल्स में कवर करूंगा, और एवरी रूल को मैं लूसिडली एक्सप्लेन करूंगा, उसका एमसीक्यू रहेगा, और उसका किस तरीके का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। अच्छा, रूल 8 के ऊपर क्या क्वेश्चन होगा देख लीजिए। Explain the provisions of Rule 8 of the CCS conduct rules regarding connection with press or other media by government servants. Why is prior sanction necessary? Rule 8 allows, question number 2, Rule 8 allows government servants to publish books or participate in public media under certain conditions. Explain these conditions and why are they are important. Explain the purpose of Rule 8 in maintaining the neutrality, integrity and credibility of the government. How does this rule prevent conflict of interest? Distinguish between activities permitted under Rule 8 such as bona fide publication of books and prohibited activities such as editing a political newspaper. तो ये सब क्वेश्चंस में पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्लियरली मैं एक्सप्लेन किया, और आराम से ये जो क्वेश्चंस आएगा आप आराम से लिख सकते हो स्पेसिफिक वर्ड लिमिट में, ठीक है। तो आज जो ये सीरीज फास्ट सीरीज था, फैबुलस एमसीक्यू सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ईएमआरएस प्रिंसिपल एग्जाम के लिए, पूरा रूल्स में कवर करूंगा। तो so my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।